Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Yes, I'm properly audible and properly visible. Good. So, hello, how are you guys? Right? Yes, it's been like 2, 3 days जब से हमने थोड़ा सा अपनी मुलाकातें नहीं की हैं, but today we are back, right? Friday I was not well. Saturday I had some technical issues, but today I'm all set and everything seems to be fine. Okay, so hi Daksh, hi Rishpanda. Okay, okay, ठीक है. So, finally it's good to be back, right? Just माहौल भी अच्छा है and मौसम भी अच्छा है. So let's start with what we are having today. सबसे important जो news आज की थी that was India and Malaysia का एक strategic pacts, right? Yes, strategic partnership that we got. तो यहाँ पे हम इसको इंडिया मलेशिया रिलेशन जो है उसकी बात करेंगे. सो देयर आर लाइक 11 एग्रीमेंट्स जो उन्होंने साइन किए हैं. 11 एग्रीमेंट्स ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सेमीकंडक्टर, ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट, energy and some other particular thing. So they also decided to promote the local currencies, uh, some other particular thing. तो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी. Why this was one of the largest news of today? क्योंकि Malaysia, like in 2019, when our parliament decided to scrap down Article 370, है ना? तो ये वो particular country है जिसने सबसे ज्यादा opposition लिया था Organization of Islamic Cooperation में. इनको लगता था कि we are violating human rights of Kashmiris, and they had like वो होता है ना आंखें एक ही डायरेक्शन में टिकी हो टेढ़ी नहीं होती. So they didn't look the human rights violation in the Pakistan occupied Kashmir, but that's a different story. So अभी के टाइम पे ये this particular strategic partnership deal agreements जो हैं they are somehow sorry इम्पोर्टेंट क्योंकि हमें कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया में एक अच्छा मार्केट एक पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए अच्छा पार्टनरशिप दिखती है अगेंस्ट द चाइना एज वेल. राइट, तो ये एक अच्छी पर्टिकुलर इनिशिएटिव है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया. राइट. देन सेकंड वन इज दिस particular Himanta Vishwa Sarma HPS and the video controversy. I'm not sure like you are aware about this or not, right? But there is a video controversy which is going on, and that is not something जो कि welcome होनी चाहिए. Yes, एक video viral हुआ, and that video was like posted by himself as well. So BJP Assam की तरफ से आया था, which was allegedly showing a CM of Assam, Himanta Vishwa Sarma, shooting Muslims. राइट. यस. एंड अपोजिशन की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड आया, बैकलैश हुआ, एलिगेशन लगाए गए हेट स्पीच के, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस के, violation of a BNS, that is 152, BNS 156, BNS 192. So, yes, कई पर्टिकुलर चीजें हैं तो वो जो हेट स्पीच या हेट वायलेंस वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट था, for that people actually backlashed against Himanta Vishwa Sarma, and after this he deleted the video. Right. Then the Naxalism. Yes, our Home Minister gave a final, what we can say, deadline. Yeah, right. Yes, and that deadline of 31st of March to end the, sorry, to end the Naxalism from the third. रहने दो अभी, लक्ष्य पॉलिटिक्स नहीं बताते, पॉलिटिक्स बात में करें. ठीक है. So 31st of March तक our Home Minister says we are going to eliminate the Naxalism from the Indian Union.
एंड उन्होंने काफ़ी चीज़ें सेटल की हमारे पास जो इंटरनल इंटेलिजेंस है उसने शेयर किया कि 31 मार्च को फाइनल टारगेट कंप्लीट हो जाएगा. The Naxal infrastructure will be destroyed. Or we can say the financial assets will be destroyed. The financial network will be destroyed. So it's a good news कि नक्सलिज्म जल्दी से खत्म हो जाए और रूरल एरियाज में भी हमारी डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा बढ़े. देन भैया मेघालय रैट होल. यस, मेघालय आजकल ज्यादा न्यूज में आ रहा है क्या? माइनिंग केस लाइक लास्ट ईयर काफी ज्यादा न्यूज में था बिकॉज ऑफ दैट हनीमून कपल और मर्डर इन सारी चीजों के कारण. मेघालय इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यार. मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन पीपल आर डूइंग सच काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग ओवर देयर. मतलब मैं घूम के आया हूँ एक दो बार एंड इट्स ब्यूटीफुल. द पीपल आर वेलकमिंग एंड अच्छा ठीक है. सो व्हाट एग्जैक्टली आप like some days back, I'm not sure about the exact date, but I guess 4th or 5th फरवरी को कुछ ऐसी न्यूज आई कि राठौर माइनिंग में ब्लास्ट हुआ जिसमें अप्रोक्सीमेट 27 पीपल डाइड. एंड उसके बाद हाई कोर्ट ने माइन ओनर्स जो फाइनेंशियरीज हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात करी. यूएनएस सॉरी बीएनएस बीएनएसएस सेक्शन 163 लगाया गया. जो कोल है जो एक्सप्लोसिव्स हैं उनको सीज किया गया. फिर अभी डिबेट चल रही है कि व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंटल लॉ एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज देयर इन इंडिया. क्यों वो जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं देखता इन सारी चीजों के अगेंस्ट. जो एक्ट है माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट उसका क्यों एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखता. सो लाइक दिस इज नॉट अ न्यू प्रॉब्लम फॉर इंडिया. इंडिया में हर एक एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही होता है. There was a news about the scorecard of the ministry. If you can explain that. करेंगे करेंगे बात उसमें भी करेंगे. पहले प्रॉपरली सेट तो हो जाए. फिर जो तमिलनाडु पीएससी है ना उसका एग्जाम कैंसिल हुआ ग्रेड 2 के लिए. राइट ड्यू टू टेक्निकल एरर. हैशटैग टेक्निकल एरर. दैट इज व्हाट दे सेड कि कुछ टेक्निकल एरर आया जिसके कारण एग्जाम कैंसिल हो गया. People have started protesting this like in entire state. Opposition was like कि भैया this is in like uh, administrative incompetency कि आप एक एग्जाम नहीं करा पा रहे हो. एंड ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के आई. सो ओवरऑल फैशन में these were some of the biggest news including the US India trade deal. है ना हमने थोड़ी बात की थी बट when the final joint statement came and like out we were not able to discuss it because of the this issue. तो Saturday Friday को मैं नहीं था available. तो आज हम उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे. what are basics जो हमें जानना चाहिए. what are the concerns and what can be the consequences that experts are seeing. तो ऐसी बहुत सारी चीजें वो लेके आए हैं तो और अपन ने थोड़ा सा डिस्कस भी किया. सो लाइक फॉर नाउ वी आर हैविंग अ क्लियर कट जॉइंट स्टेटमेंट. तो वी कैन प्रेडिक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउट ऑफ इट. फ्यू डेज बैक जब ये लाइक मोदी जी ने सॉरी ट्रम्प ने डिक्लेयर किया फिर मोदी जी ने डिक्लेयर किया. आफ्टर दैट इंडिया मीट में मोदी जी का काफी स्वागत किया गया था. ड्यूरिंग दैट टाइम वी डिडंट हैड मच ऑफ इट लाइक एक्सेप्ट रशियन ऑयल खरीदना बंद करना पड़ेगा. $500 बिलियन का ट्रेड करना पड़ेगा. इंपोर्ट करना पड़ेगा. दीज वर सब बेसिक्स जो हमें पता था. तो आज हम थोड़ा सा यूएस इंडिया ट्रेड डील के बारे में भी बात करेंगे. ठीक है. सो चलो थोड़ा थोड़ा एक एक करके न्यूज शुरू करते हैं. राइट. सो सबसे पहले तो बात करते हैं ताकियाइची. राइट ताकियाइची वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज. आज की न्यूज में जापान में पहली फीमेल लीडर जो है जनरल इलेक्शन में शी इज growing in the general election and she is said to be the first female leader of Japan. Right. And फिर अमेरिका सॉरी ईरान की तरफ से फिर से एक स्टेटमेंट आया कि दे वोंट स्टॉप यूरेनियम एनरिचमेंट. सो अमेरिका क्या कहता था ईरान बंद कर दो यूरेनियम एनरिचमेंट. हम इंडिया ईरान मतलब कि हम तो करेंगे. तो ये कुछ बेसिक है इंटरनेशनल न्यूज में जो आज का हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं इंडिया मलेशिया रिलेशनशिप की. राइट. यस. सो रिसेंटली लाइक आज नो कल yesterday Prime Minister Narendra Modi and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim signed
11, right? Pacts and MOUs and agreements between India and Malaysia, and it is known as Comprehensive Strategic Partnership Agreements. So CSPA is कुछ ऐसा नाम वाम भी देने की कोशिश की गई. That is a simple word. अब उन्होंने कुछ पर्टिकुलर पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट ऐसे किए हैं जिससे इंडिया की जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे व्हाट यू कैन से स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा. ऐसा नहीं कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में कोई ट्रेड नहीं है या कोई रिलेशन नहीं है. वी हैव वेरी गुड फ्रेंडली रिलेशंस विद दीज पर्टिकुलर कंट्रीज एंड प्लेसेस. कि जो 2019 में मैंने बताया आपको कि व्हेन इंडिया decided to scrap down the Article 370, इंडियन पार्लियामेंट ने जब डिसाइड किया था तो मलेशिया वाज अपोजिंग दिस डिसीजन, राइट. तो अभी एक वापस अपने पास व्हाट वी कैन से एलाई एक वापस जुड़ जाना, दैट इज समथिंग जो कि एक अच्छा न्यूज़ है. सो व्हाट आर द मेजर एरियाज इन विच दे टॉक अबाउट. वन ऑफ देम इज डिजिटल इकोनॉमी एंड पेमेंट्स. यस बच्चे लोग, उधर भी यूपीआई चलेगा. हाँ भाई साहब. सो मेजर कोलैबोरेशन बिटवीन दी वो क्या नाम है उसका एनपीसीआई एंड जो वो है एनआईपीएल है, उनका एक मेजर कोऑपरेशन हुआ है पी नेट. यस, दिस इज देयर पेटीएम और यूपीआई कह सकते हो, है ना. मलेशिया टू लिंक डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ यूपीआई, है ना. तो पे नेट और यूपीआई का एक इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा मलेशियन मार्केट में, सो दैट दे कैन बी ईज ऑफ रेमिटेंस पेमेंट एंड समथिंग. ठीक है. सेकेंड एरिया दे फोकस इज ऑन द सेमी कंडक्टर्स. इंडिया अभी रिसेंटली बजट अपन ने डिस्कस किया था. बजट में सेमीकंडक्टर टू मिशन 2.0 के लिए काफी अच्छा खासा बजट रखा गया था. तो एक नया पैक्ट है जो इन दोनों के बीच में है. इन विच बोथ द कंट्रीज बोथ द नेशन विल focus on manufacture. They will focus on design, development, and securing supply chain for the semiconductors. This is one of the particular areas they focus. Third, they focus on the security and defense. Yes, South China Sea, the Great Channel, Indian Ocean, Bay of Bengal, फिर वहीं से connected जो particular आगे की वाटर बॉडी से पैसिफिक, ऐसा कई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर देखा जाए सेंटर पॉइंट, तो मलेशिया इज देयर, राइट. तो एक व्हाट वी कैन से एक एक्सचेंज ऑफ नोट्स टू एनहांस द सिक्योरिटी कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस एंड लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन पे एक पैक्ट जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है. इज इट फाइनलाइज? नो, इज इट इट्स नॉट फाइनलाइज, है ना. अगर तुम सिंपली समझोगे तो देर आर 11 की एग्रीमेंट विच दे आर एग्रीड, है ना. और उसमें भी ध्यान से देखोगे तो कई एमओयूज हैं and कई जो हैं स्पेसिफिक हैं एंड कई स्ट्रेटेजिक. फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर सिक्योरिटी डिफेंस और डिजिटल पेमेंट वाला, दे आर एग्री. कल्चरल जो पर्टिकुलर टूरिज्म है, कल्चर टूरिज्म है, उसके लिए दे एग्रीड फॉर द वर्कर वेलफेयर. दे एग्रीड टू सपोर्ट इंडिया इन द यूएनएससी's permanent membership. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसपे अभी भी डिस्कशन होता है. तो कुछ एमओयूज हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ पैक्ट्स हैं, तो दैट इज समथिंग जो अभी भी है. नाउ लाइक जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं लाइक मेडिसिन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंटी करप्शन, वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके लिए भी एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द इंडिया एंड मलेशिया. अब जो क्या कहना चाहिए, स्ट्रेटेजिक हाइलाइट्स हैं इस पैक्ट की, अगर अगर हम उसकी बात करें. स्ट्रैटेजिक हाइलाइट्स का सीधा मतलब है व्हाट वी कैन से जिसका एक स्ट्रैटेजिक डील, या ये डील इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लोमेटिकली एंड स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है. उसमें सबसे पहली चीज है लोकल करेंसी. यस, इंडिया एंड मलेशिया दे बोथ एग्रीड टू प्रमोट द यूज ऑफ इंडियन रुपी एंड मलेशिया रिंगिट. यस, इन्होंने डिसाइड किया कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें हम लोकल करेंसी यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ थर्ड पार्टी करेंसी, डॉलर. ओके. सो डॉलर या डॉलर यूज नहीं करेंगे, लोकल करेंसी यूज करेंगे. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिपेंडेंसी ऑन डॉलर कम होगी, तो हमें अपने ट्रेड में बूस्ट करने में आसानी होगी.
सेकंड, देयर आर न्यू इंस्टीट्यूशंस जो एस्टैब्लिश किए जाएंगे, है ना, इन द तिरुवल्लुर से लाइक जहाँ पे मलेशियन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया, a new consulate general in India, in what we can say, कोटा के नावालू में यहाँ पे एक न्यू कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया भी खोला जाएगा, and तिरुवल्लुर में यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया का पहला सेंटर भी खोला जाएगा। तो थोड़ा सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी उन्होंने वो किया है। They, like Malaysian supported the India's permanent membership in UNSC. This is something जो कि हमारे लिए एक particular अच्छा वो था कि हाँ चलो अब as like apart from very strategic partners like Japan or Germany or Brazil or ये वो G4 के members हैं. Now Southeast Asia and especially a Muslim country like Malaysia, they are one of them जो कि इस चीज को वेलकम कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक विन है कि हमें यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट मिल रहा है। एंड द लास्ट वन इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यस, इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है उस पे भी आगे बात कर ली है, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं फॉर द जॉइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, राइट। उसके लिए उन्होंने साइन कर दिया है फॉर्मेलिटीज मलेशियन ने। सो वो जो इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव है टाइगर्स और इन सब का, तो वो मलेशिया के साथ भी स्टैब्लिश हो गया। सो स्ट्रेटेजिक हो, इकोनॉमिक हो, इन बोथ द वेज दिस विजिट वाज अ सक्सेस फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। एंड कहीं ना कहीं, है ना, इस टाइप के हमें लोकल जो सपोर्ट है उनको थोड़ा सा वो करना चाहिए, like क्या कहना चाहिए, हेल्प आउट करना चाहिए। लाइक जो कंटेंट है वो विजिबल है ना, जो पीडीएफ, जो न्यूज़ पेपर मैंने वो किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, कि इसको और जूम करना पड़ेगा। दिस लुक्स गुड। मैंने ध्यान नहीं दिया है मेरी स्क्रीन में कैसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। सो दैट वाज समथिंग जो कि इंडिया मलेशिया के उसमें था। तो लाइक इज इट फाइनलाइज जो दक्ष का वो था, है ना, तो दे वाउ टू एक्सपांड देयर टाइज, राइट। सो कम सम इन सम पर्टिकुलर थिंग दे आर एग्रीइंग, समथिंग दे आर नॉट एग्रीइंग, सो उसमें भी डिस्कशन होगा। uh, ये एक पर्टिकुलर इशू जो अभी रिसेंटली इंडिया में नया आया है, वो ये है, द गवर्नमेंट मिनिस्टर देमसेल्फ आर लाइक हैविंग लाइक काइंड ऑफ हैविंग फाइट, है ना। दैट इज व्हाट ट्विटर में पिछले 2 दिन से ही चल रहा था। One of the journalists in US asked our Minister of External Affairs, Mr. S. Jaishankar, what's your view in the like India US trade deal? So he said, ki, see, you cannot ask about it to me, and because the majority of discussion and majority of negotiation was from the Ministry of Commerce, Mr. Piyush Goyal, तो you can go for it. और जब पीयूष गोयल से पूछा गया कि सर क्या हमने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है और इसके लिए हमने आगे कुछ वो किया, तो उन्होंने बोला कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मैटर है, आप उनसे पूछ लीजिए। So people started feeling like कि there is a gap, there is a particular, what we can say, एक दूसरे से लोग थोड़ा सा ट्रस्ट में इश्यूज हैं, या लोगों को पता नहीं है, या दिस डील इज अ फेलियर बिकॉज ऑफ दिस, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। बट दे क्लेरिफाइड कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सारी चीजें अलग है। सो थोड़ा सा इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात करें, कल मैंने एक बहुत पर्टिकुलर वो देखा, एक एडिटोरियल पढ़ा और एक वीडियो भी देखा, जिसमें एक्सपर्ट्स वर एक्चुअली डिकोडिंग द टाइमलाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर डील। तो पहले लाइक इंडिया अमेरिका वो फ्रेंड, and like India was a very friendly nation for America. Then after Operation Sindoor, things started getting critical. Yes, first Trump took the credit of a ceasefire, saying I am the one who like conducted this peace ceasefire. उसके बाद they put like tariff on us. So पहले उन्होंने, when I got to SBI, then they do the same. टेबल नंबर 2 नहीं, लाइक लंच टाइम चल रहा है, अभी रुक जाओ दक्ष।
So they were asking something लाइक पहले उन्होंने ट्रेड जो है रेसिप्रोकल रखा फिर बढ़ाया 25% कर दिया देन दे एडेड द एडिशनल व्हाट वी कैन से पनिशमेंट काइंड ऑफ टैरिफ और समथिंग लाइक दिस तो वो हुआ उसके बाद फिर इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ आ गया देन यहाँ से चीजें थोड़ा सा क्रिटिकल हुई now they started taking the what we can say credit of India-Pakistan ceasefire on like Trump was like I was the one and Modi ji was like there was no external pressure on the ceasefire राइट एंड यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुई देन इंडियन साइड जो है उन्होंने रशियन एंड जो चाइनीज काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ दोस्ती जो है वो बढ़ानी शुरू की या दिखानी शुरू की फॉर एग्जांपल एससीओ के समिट में इन लाइक मोदी जी दिखे पुतिन के साथ एंड शी जिनपिंग के साथ फिर दिस वाज लाइक इन लास्ट 8 इयर्स पहली बार मोदी जी चाइना गए थे एंड पुतिन आए एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हुई सो देयर वर लाइक सम पर्टिकुलर बेसिक्स जिसके थ्रू एक डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जा रहा था देन came our NSA, National Security Advisors. This is still not officially confirmed by the governments, like whether that is USA or India, but US media houses confirmed this that like recently, last year, December, May, and January, May, NSA had two visits in US, and he clearly spoke to the counterpart and Margot Rubio, the External Affairs Minister kind of thing in USA. And he said two, three basic things. Right. अब ये कितना सही है ऑफिशियल नहीं है बट ही सेड टू थ्री बेसिक थिंग फर्स्ट थिंग ही सेड कि सी वी कैन वेट फॉर द नेक्स्ट टर्म यस अगर आप फाइनलाइज कर रहे हो हमारे साथ ट्रेड डील तो दैट्स कंप्लीटली फाइन ऑलमोस्ट साल भर निकल चुके हैं 2-3 साल और वेट करना है वी कैन वेट फॉर द नेक्स्ट टर्म जब नया प्रेसिडेंट आ जाएगा तब हम उसके साथ ट्रेड डील देख लेंगे तुम देख लो तुम तब तक खिचड़ी खाओ राइट सेकंड ही सेड कि इफ यू आर फाइनलाइजिंग ट्रेड डील जो ये ट्रैश टॉकिंग है बाय द डिनाइल क्लेम है ना ये बंद होना चाहिए और इससे कहीं ना कहीं इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस छवि को प्रॉब्लम होती थर्ड वो जो रशिया एंड चाइना का जो पर्टिकुलर वो था एंगल था उसको भी शो करने की कोशिश की है देन दिस केम इनटू फाइनल नेगोशिएशन now, is it a victory for India or is it a loss for India or vice versa for America? ये एक अभी थोड़ी सी दूर की कौड़ी है ना? But what we know about this particular deal, हम उसकी बात कर लेते हैं, है ना? This was a story again. मैं बता रहा हूँ कि अभी ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट ने या अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये कंफर्म नहीं किया है कि डोभाल जो अजीत डोभाल है उनकी विजिट किस टाइप में थी बट वहां के लोकल मीडिया हाउसेस ने इसको रिपोर्ट भी किया मैंने चेक भी किया कि हाँ यार इस टाइप की रिपोर्टिंग हुई थी बट ठीक है सो व्हाट आर द इंडिया यूएस ट्रेड डील तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी कोर प्रोविजंस की हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं यार जो कोर प्रोविजंस है उसमें सबसे पहले तो टैरिफ रिडक्शन तो जो टैरिफ है वो रिड्यूस होके इंडिया के ऊपर हो गया है 18%. Right. So US has like slashed the overall tariff on the most of the Indian goods from like 50% to 18%. इसके अलावा मतलब इसमें वो है कि जो 25% पेनाल्टी टैरिफ था वो भी हटा दिया गया है ना और जो ओवरऑल टैरिफ उन्होंने 25% बढ़ाया था वो भी कर दिया कम एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है कि यूएस के जो पर्टिकुलर गुड्स होंगे उनके ऊपर 0% टैरिफ होगा तो यहाँ पे अभी भी क्लियरिटी आपको नहीं मिली बट अमेरिकन काउंटर पार्ट सिंपली ये कह रहा है कि यस अमेरिकन गुड्स पे 0% टैरिफ होगा सो ये पहला वो है दूसरा जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक या ये कह सकते हो कोर हाईलाइट था वो ये था कि रशियन ऑयल यस सो इंडिया विल लाइक स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल है ना एंड सिंपली जो उसमें स्टेटमेंट में मैं वो बता देता हूँ the key driver to the deal is India's commitment to significantly reduce or halt the purchases of Russian crude oil in favor of sourcing from the US and potentially Venezuela. सो उन्होंने सिंपली लिखा हुआ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस और हॉल्ट तो इनमें दोनों ऑप्शन है सो स्टिल पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट कि वेदर दे आर गोइंग टू रिड्यूस इट और वेदर दे आर गोइंग टू हॉल्ट इट इस पे अभी भी डिस्कशन डिबेट
एंड आंसर गवर्नमेंट का आना बाकी है। तो रशियन ऑयल पे या तो रिड्यूस होगा या फॉल्ट होगा, दैट इज व्हाट दे आर मेंशनिंग। और जो रेस्ट एनर्जी सप्लाई है वो यूएस और वेनेजुएला से किया जाएगा। सो यूएस से मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू हैव गैसेस एंड वेनेजुएला से वी आर गोइंग टू हैव ऑयल, एंड these all these two things are problematic. Yes, रशिया टेक्निकली लाइक थोड़ा सा दूर था सम, अगर मैं ओवरऑल मेन लैंड की बात करूँ तो दिस वाज लाइक 35-3700 किलोमीटर दूर। एंड अगर मैं वेनेजुएला यूएस को देखूं तो दे आर लाइक 12,000 किलोमीटर्स अपार्ट। सो यहाँ से ऑयल एंड गैसेस इंपोर्ट करना एक कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। सो वी स्टिल डोंट नो Americans are going to give us the oil and the gases on certain subsidy or something like this. We still don't, right? But we know कि हाँ हम वहां से खरीदने वाले हैं। थर्ड, एक एक्सपर्ट का कहना है कि वेनेजुएलन ऑयल में सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, तो उनको रिफाइन करना एक मुश्किल काम होता है। सो जो रिफाइंड ऑयल, जो ऑयल हम रिफाइन करके बेचते थे फ्रॉम द रशिया, विच वाज इजी टू रिफाइन, उसके उसके लाइक अगेंस्ट वेनेजुएलन ऑयल की जो रिफाइनरी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिस कारण हमारा जो वो है क्या कहना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिफाइंड ऑयल है वो कम हो जाएगा। सो ये एक तीसरा है। थर्ड, जो कोर ड्राइवर्स या कोर वो है $500 बिलियन का परचेज फ्रॉम द इंडिया। यस, इंडिया हैज signaled intent, mark the words, signaled intent to procure over $500 billion in US products over the next 5 years, including energy, aircraft, technology, and coking coal. Right? So India has a signaled intent. ओके, हाय भाविक। So, यहाँ पे भी एक क्लियर कट वो नहीं दिया गया है कि भैया हम खरीदेंगे $500 बिलियन का या नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम है भाई साहब, जितना हम टोटल इंपोर्ट करते हैं कुछ लाइक $780 बिलियन या $700 बिलियन के बीच में, उसका $500 बिलियन अगर हम अमेरिका से लेंगे तो बाकी हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके साथ क्या होगा, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम है। सो दीज आर द कोर प्रोविजन जो कह सकते हो ड्राइवर्स रहे हैं इस पर्टिकुलर डील के। देन सेक्टर स्पेसिफिक जो इम्पैक्ट है उसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया गया, मैंने उसके नोट्स बनाए। तो जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो थोड़ा सा वो इम्पैक्ट में आएगा। India will reduce the tariff on the high-end American cars above 3000 cc to 30% from 110% over the 10 years, eliminating duties on Harley-Davidson bicycles. Future electric vehicles were included in these occasions. So, मित्रों, मुबारक हो, हार्ले डेविडसन सस्ती होने वाली है, राइट? तो तुमको अगर बाइक्स का शौक है एंड तुम वो द ग्रेट अमेरिकन बैडएस द हार्ले डेविडसन चलाना चाहते हो, तो वेलकम दक्ष, खुश हो जा भाई, तुम्हें जल्दी से जल्दी वो मिलने वाला है, सस्ती बाइक मिलने वाली है। द मेजर कंसर्न एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। कल मैंने कुछ स्पेसिफिक डेटा पढ़े, एक एसबीआई की रिपोर्ट थी, एक डाउन टू अर्थ में पब्लिश हुई रिपोर्ट थी। ये दोनों रिपोर्ट पढ़ी कल मैंने, काफी अच्छा संडे एंजॉय किया यूएस ट्रेड डील के चक्कर में, यूएस इंडिया ट्रेड डील के चक्कर में। एग्रीकल्चर एंड डेयरी, अगर अगर जैसी बातें हो रही हैं, इफ दैट इज करेक्ट, राइट, कि इंडियन मार्केट्स जो हैं वो अमेरिकन फार्मर्स के लिए, अमेरिकन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए खोले जाएंगे, देन इट्स गोइंग टू हैव वेरी 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 क्रिटिकल इम्पैक्ट। मुझे अब जाके पता चला कि इंडिया और यूएस के फार्मर्स की सब्सिडी कितनी होती है। सो इंडिया में एक फार्मर की एवरेज सब्सिडी ₹6,000 होती है, क्या राइट? यूएस में एक फार्मर की एवरेज सब्सिडी कुछ नहीं होते होते भी लगभग 70 लाख होती है। इन सर्टेन केसेस इट इज मोर देन 1.5 1.75 crores। फॉर एग्जांपल, जो कॉटन की एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स हैं उन्हें इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ रुपीस की सब्सिडी मिलती है पर ईयर। नाउ हाउ इंडियन फार्मर विद ₹6,000 पीएम किसान सम्मान निधि सब्सिडी is going to compete with the US average 70 lakh rupees subsidized farmer?
अरे भाई, दक्ष, अभी कार तब लेता आदमी जब उसको फैमिली एंड बाकी चीजें देखनी होती है। आई थिंक यू आर अ किड, यू आर सिंगल, गो फॉर बाइक्स, दैट इज बेटर, राइट? बाय अमेरिकन, so it will eat away Amul's market. Not only that, so let's come back to the topic, है ना? Like यूएस के किसान के पास एक हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर कंडीशन है, यूएस बहुत सब्सिडी देता है, बहुत फाइनेंशियल हेल्प करता है, इंडिया के पास नहीं है। यूएस का जो पर्टिकुलर फार्मर है, उसकी एवरेज लैंड जो है, वो somehow 50 to 60 एकड़ के बीच में है, while India's average land, like farmer's average land is close to 1 acre. राइट? सो ओवरऑल फैशन में अगर देखा जाए तो दिस इज गोइंग टू बी द लाइक डजंट इवन हैव अ प्रॉपर मैच। व्हाट दे आर सेइंग, अगर मैं पीयूष गोयल का रीसेंट स्टेटमेंट जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया, सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट उन्होंने एक उसमें भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने सीधा बोला इंडिया हैज मेंटेन्ड अ वेरी रेड लाइन on a sensitive staples like wheat, rice, dairy products, which remains fully protected. However, tariff will be reduced on the items such as tree nuts, that is like क्या बोलते हैं, walnut, almond जैसा कुछ, fresh fruits like apple, soybean oil and wines वगैरह। So उन्होंने बोला है कि जो core है, like for example wheat, rice, dairy product, they are sensitive and they are completely remain fully protected. But there are certain particular parts जहाँ पे उन्होंने allow किया हुआ है, राइट? या डेफिनेटली द मतलब अमेरिकन एग्रीकल्चर नेक्स्ट लेवल। अगर एग्रीकल्चर मार्केट जो है, डेयरी मार्केट अगर ये खोल रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर आवर फार्मर्स। बट जैसे कि मैंने बोला कि उन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया मेंटेन्ड अ रेड लाइन ऑन द सेंसिटिव वन, लाइक व्हीट, राइस, डेयरी, यहाँ पे दे आर फुली प्रोटेक्टेड, नोबडी एल्स इज गोइंग टू कम। तो ये एक वो है कि ठीक है, अभी भी उम्मीद है कि आवर फार्मर्स आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर प्रोटेक्टेड सेटअप। देन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पे भी एक पर्टिकुलर वो आगे बढ़ी है। द डील इज एक्सेस फॉर इंडिया टू एडवांस द टेक्नोलॉजी लाइक एआई चिप्स, राइट? डेटा सेंटर इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट पार्ट, which will now face zero or reduced duty from the US. तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, सम अदर एस्पेक्ट है, उस पे उन्होंने रिड्यूस टैरिफ या रिड्यूस ड्यूटीज जो है वो बात की है। तो टोटल फैशन में इंडिया के लिए भी इतना लॉस लॉस सिचुएशन नहीं रहा है, राइट? क्या कह रहे हो भाविक? कांट बिलीव दे हैव सच एडवांस एग्रीकल्चर बट कंज्यूम स्टफ लाइक मैकडोनल्ड। डोंट आस्क, मतलब अमेरिकन के साथ क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट फास्ट फूड वहाँ की लाइफस्टाइल से मतलब थोड़ा सा इंस्पायर्ड होती है। लाइक कि फास्ट फूड है, सो यू आर गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस, सो आप रास्ते में आपने कॉफी लिया, एक सैंडविच, एक बर्गर ले लिया एंड उसके साथ आप चले गए। तो उनकी लाइफस्टाइल से सेटअप है। हमारे यहाँ देखो, मतलब मैं खाना खाने बैठता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं डिनर पे बैठा हूँ, तो I'll gather all the material, dal, chawal, roti, sabzi, pani wani, and then I'll sit down on the dining table and then I'll eat for half an hour, 45 minutes while watching cartoon or movies. राइट? वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहते हैं पब्लिक, राइट? नाउ अगर मैं ओवरऑल इंडियन मार्केट की बात करूं, so they had a proper positive response on the side, है ना? उनका एनालिस्ट जो है, उनका कुछ एनालिस्ट है, उनका मानना है कि 18% tariff rate will give India exporters a competitive edge over the emerging markets like China, which still faces higher duties. So जो इंडिया के लिए पहला बेनिफिट निकल के आता है वो ये आता है कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं, जो हमारे जैसे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, विच इज लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, China, they are still facing a higher tariff than us. So हमारे लिए एक कॉम्पिटिटिव एज या कॉम्पिटिटिव बेनिफिट मिल सकता है कि लोकल पब्लिक ऑफ अमेरिका विल प्रेफर इंडियन गुड्स, क्योंकि वो रिलेटिवली चीपर मिलेगा। तो final implementation of the revised tariff is expected to be in the March 2026। तो मार्च 2026 में जाके ये पर्टिकुलर चीज जो है वो
आगे बढ़ सकती है। तो दैट इज व्हाट वी नो अब तक जो भी है। आई ट्राई टू फिगर आउट मोर एंड आई गेट इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट कि हम एक वीडियो लेके आ जाएं यूएस इंडिया ट्रेड डील में। सो अदर केशव सर विल टेक इट और मैं जो भी होगा अपन बात करेंगे। सो दैट वाज इंडिया यूएस ट्रेड डील। लेट्स कम टू एचबीएस। हाँ, Himanta Viswa Sarma. He is not a new name to the controversies. First thing, पहले ये कांग्रेस में थे, फिर ये बीजेपी में चले गए. So the series of controversy started from there. So there was this particular video on social media in which he was holding a gun and there were like some particular thing. मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो मैं देखना चाहता था, बट जब तक ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी, बिकॉज आई डोंट टेक हिम सीरियसली. हाँ, like really, he is the man. That is again my personal opinion. Uh, just talking, right, negative, and he is doing nothing productive. मैं बताऊंगा भी कुछ मैंने इकट्ठा भी किया हुआ है. So he is the chief minister of Assam, and he's from BJP, and he is having like series of controversies जो उनके साथ था. तो सबसे पहले तो वो point blank video, that is what they are calling it. पॉइंट ब्लैंक वीडियो. सो द रिसेंट सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सी जो है वो वीडियो है जो असम बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर या एक्स अकाउंट में पोस्ट किया गया था. दैट वाज अ डे बैक, है ना, व्हिच वाज डिलीटेड. सो कंटेंट क्या था? दिस वाज एन 18-second clip featured a real footage of Sharma handling an air rifle, interspersed with an AI generated visual showing bullets striking framed photograph of men with scalp beard markers associated with the Muslim identity. So there is a real video in which he is holding an air gun. Then there is an AI generated particular clip. जिसमें वो जो bullets निकल रही हैं, those bullets are getting into a photo frame, like some photo frame, which had a man with a beard and scalp, we can say topi wala part, skull cap, right? And that looks like the Muslim man. People started seeing it as very negative and like undoubtedly this is negative. India is a sovereign nation. When we don't want others to interfere in our personal issues, right? At that time we have to understand कि हमारे personal issues सही रहे. But if a chief minister and there is a party handle in Twitter is posting such kind of video where like a chief minister is killing someone on the basis of the religious identity, that doesn't suit. India is a secular nation. इंडिया में हर एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को राइट है अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए, एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट सिटीजन एज अदर रिलीजन्स एज वेल. सो एक कंट्रोवर्सी आई बाहर, है ना, जो स्पेसिफिक फोटो फ्रेम था वो अलग तरीके से जो कांग्रेस के असम कांग्रेस के चीफ थे गौरव गोगोई. ही वाज लाइक कि दिस कैप्शन, अच्छा कैप्शन में नो मर्सी, फॉरेनर फ्री असम, पॉइंट ब्लैंक शॉट, ये सारी चीजें उठा के उन्होंने बोला बोले दिस इज हाउ यू आर डूइंग. तो उन्होंने हटा लिया. फिर अपोजिशन जो कांग्रेस वो थे केसी वेणुगोपाल, दे टर्न द वीडियो a call for genocide and endorsement of the state violence. So ये एक बहुत ही क्रिटिकल टर्म था. मतलब जो ये वर्ड है जेनोसाइड, टेक्निकली आई कैन नॉट, आई शुड नॉट यूज इट ऑन द यूट्यूब क्योंकि ये बैन होता है, बट एज लाइक ब्रीफिंग ऑन द सर्टेन थिंग तो आई कैन डू दिस. सो केसी वेणुगोपाल ने सीधे तौर पे बोला कि दिस वीडियो इज अ कॉल फॉर जेनोसाइड एंड अ स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस. तो इसके बाद फिर इनको डिलीट करना पड़ा. दैट इज नॉट द फर्स्ट थिंग, है ना. इसके पहले लाइक ऑन आई गेस 26th of January, I'm not exactly remembering the date, Himanta Vishwa Sarma again outraged a dick boy by arguing citizens, ध्यान से सुनो, है ना, सुनना, arguing citizens to create everyday inconvenience for those he labeled as illegal Bangladeshis or Miyas. Yes, he said कि if a Mia rickshaw puller asks for 5 rupee fare, people should only pay 4 rupees.
So अगर एक रिक्शा पुller he is asking for 5 rupees, pay him only 4 rupees if he is a Mia or illegal Bangladeshi immigrant. उन्होंने फिर बताया कि किस तरीके से आगे चल के इनको लॉस होगा, फिर वो छोड़ के चले जाएंगे, बहुत सारी चीजें। राइट। फिर जो एक्टिविस्ट है हर्ष मंदार, उन्होंने एक ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट शर्मा, accusing him against the like creating promoting enmity and hatred against a community. इसके पहले इट वाज नॉट लाइक, बहुत दूर। अभी गौरव गोगोई की वाइफ के लिए भी, राइट, उन्होंने एक अच्छी खासी वो की है, क्या कहना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर किया कि इनकी वाइफ जो है उनका लाइक रिलेशन पाकिस्तान से है, एंड वो यहाँ पे पाकिस्तान की एजेंट है वगैरह वगैरह। सो ये पहली बार नहीं था कि लाइक ऐसी कुछ चीज हुई है, देयर इज अ कंट्रोवर्सी, है ना, जिसमें उन्होंने वो भी किया था कि कांग्रेस ने भी तो ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं वगैरह वगैरह। सो ऐसे पर्टिकुलर लॉजिक को हम व्हाट अबाउट ही कहते हैं। आई मीन देयर इज अ पर्सन हु इज बैड, इसीलिए हमने उसको वोट दे के सरकार नहीं बनाने दिया है। सो अगर वो गंदी हरकतें करेगा तो क्या तुम भी गंदी हरकतें करोगे, क्योंकि उसने कर दिया था। सो हेमंत बिश्व शर्मा के साथ काफी सारी चीजें हो रही हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज असम में रिसेंटली इलेक्शन होने वाले हैं। So there are tons of different thing which is going on, and from last 1 week, like especially 26 January के बाद से, there are two major incident जहाँ पे hate speech and के against दो अलग-अलग example देखने को मिलता है। One of them is दीपक कुमार कश्यप, है ना, जिन्होंने एक मुस्लिम मैन को हरासमेंट से बचाया, राइट, एंड देन हमारे हेमंत विश्व शर्मा है जो इस टाइप की वीडियो अपलोड करता है। ठीक है, तो ये एक अपनी ही कहानी है, खैर रहने दो। तो वो चल रहा है, बट दिस इज समथिंग जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है, राइट। फिर हमारे जो, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज में जाते हैं। वेर इज एनएसए नाउ, यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राइट, लेट्स नॉट डिस्कस दिस। कंट्री विल सून बी फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म। सो हमारे होम मिनिस्टर का ये कहना है कि जो 31 मार्च है, दैट इज द डेडलाइन फॉर द एंड ऑफ नक्सलिज्म। हम फाइनल रेड कॉरिडोर के जो फाइनल पार्ट्स है रेड कॉरिडोर के, वो भी हम निपटा देंगे। इंडिया जो है नक्सलिज्म फ्री हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट इंडिया इज हैविंग इन फॉर लाइक लास्ट few years in the internal security. Then Kerala's digital literacy. Phase 2 of digital literacy plan focuses on cyber security and AI. So Kerala का कहना, this is something जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी, साइबर अवेयरनेस जो है वो कितनी अच्छी है तुम्हें पता ही है, राइट। हाँ, एंड एआई के बारे में नॉलेज कितना है, यू नो व्हाट दे आर डूइंग इन द ट्विटर एंड द ग्रोक हो या दूसरे एआई के साथ, they are just making fake videos or some other thing, and they are not using it for the proper analysis or something. So it's a good thing that Kailash digital literacy will focus on the AI, the cyber security. इससे ज्यादा बेहतर awareness create होगी, right? Opposition slammed government on abrupt cancellation of Tamil Nadu PSC exam, that is Public Service Commission exam for grade 2 A services. गवर्नमेंट का कहना था कि भैया कुछ टेक्निकल एरर के कारण हमने गवर्नमेंट एग्जाम कैंसिल की है, राइट। द अपोजिशन इज सेइंग कि यू आर वेरी वीक इन एडमिनिस्ट्रेटिव, सो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग। डीएमके गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हमारे पास कुछ टेक्निकल एरर्स देखने को मिले तो हमने एग्जाम कैंसिल कर दिए। एंड जो अपोजिशन है स्पेशली बीजेपी, उनका कहना है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल हो। I miss one news I just wanted to discuss. Ah, blind woman tops the merit list of the judge. Another beautiful news from the Kerala. Lawyer Tanya Nathan C. Right, she is all set to become the first visually challenged women judge. Right, तो इन्होंने टॉप किया है उस एग्जाम में, और अगेन हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है। सो दैट इज वन ऑफ द पर्टिकुलर एग्जांपल जिसके थ्रू हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि सी देयर आर सम पर्टिकुलर फिजिकल चैलेंजेस बट यू कैन नेवर बी व्हाट वी कैन से never ask yourself you are lower than others. So standoff between DMK over the seat may split between Tamil Nadu Congress and
समथिंग। सो अभी भैया तमिलनाडु में इलेक्शन है तो सीट वीट बटेगी, उसी की बात कर रहे थे ये। गांधी स्मारक निधि slams wrong portrayal of Gandhiji in the advertisement. So, Congress and BJP issued advertisement depicting Gandhiji to air their views on the BBG Ramji Act. और ये पर्टिकुलर चीज जो है वो गांधी स्मारक निधि जो है उनको पसंद नहीं आया। गांधी जी का यूज पॉलिटिकली करना भी सही नहीं है, बट दोनों पार्टी करती है, क्या कर सकते हैं। Visually challenged women become a judge in Kerala after topping the merit list. अपन ये बात कर चुके हैं, जो तानिया स्नाथन सिंह हैं उन्होंने किया था। She is 24-year-old. She got the first rank in LLB exam in the Kannur University. Then she practiced law and then she had like civil judge exam जो junior division का होता है उसको complete किया और वो first आई है। तो she is said to be the first visually challenged woman to become judge। ये डिस्कशन अपन कर चुके हैं कि हिमंता टारगेट स्कोर इज वाइफ ऑफ द पार्क लिंक। हो चुका है डिस्कशन, तो हम नहीं करेंगे। मेघालय पुलिस टोल्ड टू एक्ट अगेंस्ट द इलीगल माइन ओनर्स, और ये बोला गया है मेघालय हाई कोर्ट की तरफ से, ध्यान देना है ना। यस। यूसीसी शुड बी फ्रेम्ड आफ्टर टेकिंग एवरीवन इनटू द कॉन्फ्रेंस, ऐसा कहना है आरएसएस चीफ श्री मोहन भागवत जी का। जी हाँ, यूसीसी दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी। सो ये कहता है कि द स्टेट शुड प्रमोट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगेन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी है, तो ये कंपल्शन नहीं है। एंड देयर आर debates of the UCC, and that is going on. For example, Uttarakhand ने भी अपने एक UCC लॉन्च किया था, but that is more over like लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन एक्ट। वो यूसीसी जैसा कुछ था नहीं उसमें। एंड अभी जो आरएसएस चीफ उनका भी ये कहना है कि इट शुड बी फ्रेम टेकिंग एवरीवन इनटू द कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स की जो अपनी पर्सनल राइट प्रोटेक्टेड है टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो देयर आर कल्चर्स जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड माइट नॉट वर्क, राइट। तो उनका ये कहना है कि सबको साथ में लेके फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया जाए, फ्रेम किया जाए। ट्रेड डील विद यूएस विल एनहांस आवर रिलेशनशिप, ये थोड़ा सा इंटरव्यू पढ़ लेना। इस इंटरव्यू से तुम्हें काफी हद तक थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उनके जो मिनिस्टर हैं, वो क्या सोचते हैं इस डील के बारे में। गवर्नमेंट की कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, उन्होंने इंडिया यूएस ट्रेड डील को क्रिटिसाइज किया है कि दिस इज गोइंग टू रेज द फार्मर्स एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। और वो अभी अपन ने डिस्कस कर लिया, तो अपन वो नहीं करेंगे डिस्कशन बार बार। Bengal tells Election Commission it will deploy 8,505 officers for the SIR। ये वही है जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स के अगेंस्ट ममता बनर्जी चाहती थी। तो उन्होंने कोर्ट में भी बोला था, कोर्ट ने भी उनको बोला था इफ यू कैन हेल्प यू कैन डू इट। तो उन्होंने 8,505 एम्प्लॉइज जो है उनको डिप्लॉय करने का कह दिया। 4 years on Kanhaiyalal's family still be waiting for the justice, says Ashok Gehlot। उदयपुर में एक बहुत ही लाइक इनह्यूमन इवेंट हुआ था जिसमें कन्हैयालाल को मार दिया गया था फेसबुक लाइव चलाते हुए, बिकॉज ऑफ सम हिंदू मुस्लिम रिलीजियस वो। एंड अब तक स्टिल दे हैव टू बी जस्टिस। उसके ऊपर उदयपुर फाइल्स भी आ गई जो फ्लॉप भी हो गई, एंड नॉट एट ऑल वेलकमिंग। अजीत डोभाल आर NSA is meeting the Canadian counterpart to discuss the safety security of the citizens। So जो NSA अजीत डोभाल हैं, वो नैथली ड्रॉलिन जो है, जो कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनसे मिलके सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी डिस्कस करके आए हैं। ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। A social media ban or will not save on the children। Remember, like a few days back, we have discussed about this particular Ghaziabad case, जिसमें तीन जो वो हैं बच्चियां हैं, they committed suicide from the ninth floor building, right? Just because they were not allowed to use phone। राइट, इसके कुछ नए एंगल्स निकल के आए हैं कि द गर्ल्स वर ट्रैप्ड इन द हाउस एंड दे वर नॉट इवन हैविंग स्कूल्स, सो दे स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, फिर उसको भी बैन कर दिया गया एंड सम अदर पर्टिकुलर थिंग। तो दिस इज जस्ट वन थिंग कि सोशल मीडिया बैन या के ड्रामा नहीं देखने को मिला या फोन की एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली। देयर इज अनदर एंगल ऑफ मेंटल हेल्थ एज वेल इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इसको थोड़ा सा फॉलो करना, इसको थोड़ा सा पढ़ना, राइट। Parliament must function as the forum of debate,
राइट फॉर कंटिन्यूस इश्यूज। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री इश्यूज थे, है ना, जो रिसेंटली पार्लियामेंट में स्पार्क के जिसके कारण काफी कुछ प्रॉब्लम हुई। फॉर एग्जांपल, मोदी जी supposed to give a thanking speech after the president's address. He was not there, and the speaker, Mr. Om Birla, said, I got a secret news that opposition MP might attack or like they can harm the PM, and that's why I told him, right, not to come to the what we can say parliament. So that is questionable thing. Matlab, parliament is, I think, the most secured building on Indian subcontinent. Not talking about Pakistan, right? But India में तो सबसे secured building है. And this we are talking about our prime minister. So yes, there can be differences, right, between opposition and ruling government. But I don't think we have such kind of bad MPs कि वो हमारे prime minister के ऊपर attack कर सकते हैं. But अभी भी वही particular चला. There was this book, memoir for the from the former General M.M. Narwani, जिन्हें कुछ पार्ट को क्या करना चाहते थे, रॉयल गांधी कोट करना चाहते थे, but he was not allowed. Then Modi ji was supposed to give the speech, but he didn't came. And जब उनकी बात शुरू भी हुई राज्यसभा में, to the opposition walk out, and it was not at all a welcoming event when it comes to a democracy, which is world's largest democracy, and according to the current government, the mother of democracy, that is India. और तो यहाँ पे वो चीज सही नहीं थी, तो मेक श्योर इसको पढ़ लेना, इसको फॉलो करना। एंड म्यांमार मिलिट्री इलेक्शन तो खैर वो तो चल ही रहा। मेक श्योर थोड़ा सा डीलिमिटेशन के बारे में अगर तुम्हें पढ़ने का मन हो, तो डीलिमिटेशन किस तरीके से, रीजन वाइज शेयर क्या कैसा क्या, इसको थोड़ा पढ़ लेना। दिस वाज अ गुड आर्टिकल, अगर तुम्हें पढ़ने का मन हो तो। नहीं तो जब डीलिमिटेशन की बात आएगी तो हम डिस्कशन तो करेंगे ही, राइट। बिजनेस में भी कुछ खास नहीं था। सिविल एविएशन फ्लाइट बैक इन इंडिया, ये भी एक वो आया था। एंड सिविल एविएशन की तो बहुत बुरी हालत है भाई। I recently saw one of the particular report जिसमें there are like 60% aircrafts regularly technical issues show कर रहे हैं in Indian civil aviation industry. So problem तो है। Talking about foreign news, the Nobel laureate Mohammadi faces 7 years imprisonment in Iran. Typical Iranian behavior. Right, जो थाई प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज क्लेम विक्ट्री इन द नेशनल इलेक्शन। थाईलैंड में अगेन से ही वही चीज चल रही है। Japan's first women leader on post for a landslide win on the general election. Yes. So जो वो है क्या कहते हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना, इनका जो कोलिशन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विक्ट्री की तरफ आगे जा रहा है इलेक्शन में। एंड जो उनकी चीफ है सनाए ताकाइशी, शी इज सेट टू बी द फर्स्ट women लीडर, women प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। फिर ईरान ने अगेन ठेंगा दिखा दिया। ईरान से कि यूएस थ्रेट को डिफाई करते हैं, सेड इट हैज द राइट टू एनरिच द यूरेनियम। सो अमेरिकन्स वर लाइक डोंट एनरिच यूरेनियम, ईरान को लाइक लेट्स स्टॉप, एंड देन दे वर लाइक वी हैव राइट टू एनरिच द यूरेनियम। सो छोड़ो, तो ये भी चलता ही रहेगा। Starmer's chief of staff quits over the invoice links to the Epstein file. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनका भी नाम आया है एप्स्टीन फाइल में। एंड जो वो चीफ ऑफ स्टाफ है, क्या नाम था उनका, मॉर्गन मैक्सवीनी, उन्होंने रिजाइन किया है, स्टेटिंग full I'm taking full responsibility for advising Mr. Stammer to appoint Peter Mandelson to the British envoy to the Washington, और ऐसी बहुत सारी चीजें बोल के, like this is unique, you know, गवर्नमेंट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। आई डोंट इवन रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने इंडिया में कब सीखा था, देखा था कि हाँ यार किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आई गॉट अ जोक यस्टरडे, अ वेरी डार्क जोक इन ट्विटर, जो मैंने पढ़ा कि एटलीस्ट टेररिस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर डेथ, और उसके बाद डैश 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 डैश, और उसके बाद लिखा हुआ था बट, है ना। ठीक है। सो फिर उसके बाद वेनेजुएला की कुछ कंडीशंस जो डिस्ट्रेस डेजर्ट्स,
इन सारी चीजों पे लिखा था। स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं था। हाँ, लास्ट पेज में एक बहुत प्यारा आर्टिकल है। आई थिंक यू शुड रीड इट। नॉट दिस वन। पीपल अगेंस्ट हेट। यस, जो उत्तराखंड का दीपक वाला केस था, दीपक कुमार कश्यप वाला, इन विच ही सेव्ड एन एल्डरली मैन फ्रॉम, what we can say, aggression of right wingers, they call themselves बजरंग दल member। तो उनके ऊपर एक पर्टिकुलर वो आर्टिकल दिया है कि किस तरीके से ऐसे इवेंट जो है वो आगे चल के देश की काफी हद तक जो कॉम्युनल हेट है उनको चेंज कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि इसको थोड़ा सा फॉलो करना। इसमें कई और भी पर्टिकुलर पॉइंटर्स जोड़े गए। इट्स अ वेरी व्हाट वी कैन से एनलाइटिंग आर्टिकल, तुम्हें पढ़ना चाहिए। मुझे जो है वो मतलब मुझे आई लाइक इट। तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, एक बार पढ़ना, बहुत मजा आएगा। ओके सो Daksh, we had this discussion in our last session कि अभी तक उसमें कोई बात नहीं हुई है। कल की एक न्यूज़ है, इट्स नॉट फ्रॉम वॉशिंगटन और द मॉस्को, अल जजीरा की तरफ से एक न्यूज़ थी कि दे मे हैव अ बैकडोर चैनल एक्टिव फॉर द डिस्कशन ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग। तो जैसे ही कुछ अच्छा कुछ कॉन्क्रीट आता तो अपन डिस्कस करेंगे। सो रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर टुडे गाइस? सी, I believe I should not rush on anything because we are smart people for debates and discussion। हम कंटेंट क्रिएटर नहीं है कि हम जितना जल्दी एंगेज करेंगे पब्लिक को उतना ज्यादा हमें लाइक्स एंड व्यूज मिलेंगे। सो इसलिए मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, थोड़ा सा डिले कर सकता हूँ। लाइक बजट आया नहीं है, लोगों ने बजट का एनालिसिस भी कर दिया। आई टुक 2-3 days टू एनालाइज कि हाँ भैया कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ये हमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजी रखनी पड़ती है। सो स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन। During Prime Minister Narendra Modi's visit to Malaysia, how many agreements documents were signed between two countries? 5, 7, 11, 15. बताओ। 11? Yes। अपन ने बात की कि देर आर 11 एग्रीमेंट्स जिसमें उन्होंने बात की, कुछ साइन किए, कुछ पे डिबेट चली। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इंडिया एंड मलेशिया एग्री टू प्रमोट ट्रेड सेटलमेंट यूजिंग विच करेंसीज? कौन सी करेंसीज का यूज करके दे आर गोइंग टू प्रमोट देयर ट्रेड सेटलमेंट? डॉलर एंड रिंगिट, रूपी एंड रिंगिट, रूपी एंड डॉलर, रिंगिट एंड युआन? तो इजी है, बता दो भैया इंडिया और मलेशिया की करेंसी क्या है, दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क। द करेक्ट आंसर इज बी। द करेक्ट आंसर इज बी। वेरी गुड दक्ष। राइट। गुड डिश पढ़ना बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलेशिया एक्सटेंडेड सपोर्ट टू इंडिया फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन विच बॉडी? किस पर्टिकुलर परमानेंट बॉडी के परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया को सपोर्ट एक्सटेंड किया मलेशिया ने? ऑप्शंस आर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, वेरी गुड उषा, वेरी गुड भाविक। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अपन ने बात करी भी थी कि दिस इज समथिंग गुड कि हमें एक मुस्लिम कंट्री की तरफ से सपोर्ट आ रहा है, राइट? एंड धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी एक्सटेंड कर सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह repeated that the deadline for eliminating left wing extremism, अच्छा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को इन जनरल द नक्सलिज्म कहा जाता है, राइट, इन इंडिया बाय?
ऑप्शन है अगस्त 15 2026, दिसंबर 31 2026, मार्च 31 2026 और जनवरी 26 2027। वेरी गुड दक्ष। आई गेस मार्च 31st, दैट इज व्हाट ही सेड, है ना, कि 31st ऑफ मार्च तक हम इसको क्या कर देंगे। वेरी गुड ऋषपर्णा, भाविक, उषा, ग्रेट गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। The BJP deleted controversial video of featuring which state's chief minister after backlash? दक्ष, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो होता है, द थिंग इज कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेफ्ट विंग की ओरिजिन की बात करें तो मार्क्स के सोशलिज्म से इसकी कहानी शुरू हुई, लेनिन के उसमें आ गई, कम्युनिज्म में आ गई, राइट, एंड देन उसके बाद चाइना के माओइज्म में आ गई, राइट। व्हाट एग्जैक्टली वाज द प्रॉब्लम? जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, दे आर दोज पीपल who are not ready to talk, not ready to accept, not ready to allow, है ना। सो देर आर पीपल हु बिलीव, लाइक फॉर एग्जाम्पल माओ की बात करें तो एक स्टेटमेंट है कि पावर कम्स विद इन द बैरल ऑफ अ गन। तो उनका ये मानना है कि जो लोकल एरियाज हैं, ट्राइबल्स हैं या आदिवासीज हैं, उनके यहाँ गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट करी फॉर देयर बेनिफिट तो उनको उनके अगेंस्ट लड़ना चाहिए, और वहां से उन्होंने बंदूकें उठा ली। दिस होल स्टोरी स्टार्टेड इन द नक्सलवाड़ी विलेज, इसलिए इसे नक्सलिज्म कहते हैं, एंड इसी को ऑफिशियली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, राइट। सो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज आर डिफरेंट, एक्सट्रीमिज्म इज डिफरेंट। एक्सट्रीमिज्म में हम बंदूकें उठा लेते हैं, और वैसे भी मतलब पीपल कॉल मी लेफ्ट विंग, मेरा पर्सनल, बट आई बिलीव कि मैं लेफ्ट विंग को सबसे ज्यादा आई गेस दया की नजर से देखता हूँ, घृणा करता हूँ। खैर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो भैया किस बीजेपी स्टेट चीफ मिनिस्टर का वीडियो रिसेंटली डिलीट किया गया? ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। क्योंकि भाविक, कृष्णपर्णा, दक्ष, इन सब का कहना है असम। हाँ, ये लंबा चौड़ा डिस्कशन हो चुका है, सो लेट्स नॉट डिस्कस। बहुत सारी कंट्रोवर्सी बता दी मैंने यार, हिमंता विश्व शर्मा से रिलेटेड आज। हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ऑन नक्सलिज्म चेयर्ड बाय अमित शाह वाज हेल्ड इन, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने हाई लेवल मीटिंग नक्सलिज्म के अगेंस्ट कहाँ पे चेयर की? ऑप्शन आर रांची, रायपुर, नागपुर, भुवनेश्वर। सर, व्हेन विल बी डिस्कस नक्सलिज्म टॉपिक एज होल? चलो देख लेंगे, करते हैं वीडियो डिस्कस करते हैं, लाइव करेंगे, है ना, रिकॉर्डेड नहीं करेंगे, लाइव करेंगे, सो दैट वी कैन हैव प्रॉपर डिस्कशन। द करेक्ट आंसर इज बी, रायपुर। यस, छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये पर्टिकुलर मीटिंग हुई जहाँ पे नक्सलिज्म के एंडिंग की बात की। वेरी गुड। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? गाइस, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। सो अभी जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसा तुम एंजॉय करो। Kerala's second phase of this literacy program, Digi Kerala 2.0, will particularly emphasize on space technology, blockchain, cybersecurity and awareness, और AI awareness और robotics। बताओ। आई गेस सी, साइबर सिक्योरिटी एंड एआई अवेयरनेस हमने डिस्कस किया था कि दिस इज समथिंग जो कि अच्छा भी है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Who is said to become Kerala's first visually challenged women judge after topping the merit list? कौन है जो केरला की पहली लाइक विजली चैलेंज वुमेन जज बनने वाली हैं आफ्टर टॉपिंग मेरिट लिस्ट? ऑप्शन है तान्या नाथन सी, मीरा मेनन, अंजना प्रकाश, लक्ष्मी अय्यर। कम ऑन फराज, दिस इज इजी वन, और मुझे ऐसा लगता है तुम्हें तो पता होना ही चाहिए, लाइक शी इज एन इंस्पिरेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
दैट इज तान्या नाथन सी। हम बात कर चुके हैं। ठीक है। The last one, last question for today is Meghalaya administration that intensify action against illegal mining in which district? किस डिस्ट्रिक्ट में ये इलीगल माइनिंग के इंसिडेंट हुआ जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंटेंसिफाई कर दी गई है? ऑप्शंस आर वेस्ट खासी हिल, रीबोई, ईस्ट जयंतिया हिल्स, साउथ गारो हिल्स। देखे तुझे तुमने ज्योग्राफी में क्या किया हुआ। नेवर थॉट अबाउट इट कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे अपन। Okay, the event took place in East Jayantia Hill district, right? That is option number C. ठीक है। सो यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज जो है वो सामने आई थी। नॉट वेस्ट, ईस्ट। दी इलेक्ट्रिसिटी केम बैक। हाँ, मेरी गलती नहीं, सडनली ऐसा नहीं है कि ईश्वर की तरफ से मुझे ऐसे इस तरीके से लाइट मिल गई। एंड देर आर सम पर्टिकुलर इश्यूज जो इस तरीके से चल भी सकते हैं कि कभी इलेक्ट्रिसिटी कम भी हो जाए तो फिर आपको ये ध्यान रखना है, you have to follow that particular, what we can say, the same thing that we did today, है ना, कि हाँ वेट करें और लाइव का वो करें। ओके, सो दैट वाज टुडे, है ना, न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट and let's wait for the next day newspaper so that we can have another set of a good discussion, right? And I hope you enjoyed it. तुम्हें मजा आया, and I'll see you in the next day, next session tomorrow. Till then, have a great day ahead. And life में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। See ya, guys. Good night. Thank you, Daksh. Thank you.